پہلے تو ہمارے ملک کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ گلوبل کمپٹیشن پاکستان میں آیا ہے. ہم ایک ایکو سسٹم بنا رہے ہیں جس میں مینٹرز ہیں, جس میں ایکسپرٹس ہیں, گلوبل کرائٹیریا کیونکہ 80 ممالک جو ہیں شامل ہوتے ہیں. اس طرح کی ٹیکنالوجی پاکستان میں ایک عورت نے سٹارٹ کی ہے. 20,000 پلس لو انکم خواتین کو ٹرین کیا ہے. ہم نے کوئی 15,000 پلس خواتین کے موبائل والیٹس کھولے. ہم غریب لوگ بیچارے وہ ساڈا بھی کچھ کرو. ہم جنرلی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں اور فری آف کاسٹ ٹریننگ ہے. اپنا کام کرنے کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے. وہ جو جس میں سانپ نہیں ہوتے تھے پٹاریاں, یہ وہ رکھ کے بیٹھی ہوئی, میڈم ان کا کیا کرنا ہے, کون سے سانپ نکالنے ہیں آپ نے؟ These are basically the products made by the entrepreneurs. Circle trains them. کوئی نظروں کا دھوکہ یا کیمرے کی صفائی نہیں ہے. یہ اتنی اچھی پروڈکٹس بنائی گئی ہیں اور پوری دنیا کے اندر یہ اس وقت سیل آؤٹ ہو رہی ہیں. تو لیجیے جناب, ہمارے ساتھ صدف عابد صاحبہ موجود ہیں. سرکل وومن کی CEO ہے اور شی لوز ٹیک. آپ کو نام سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کوئی شی ہے جو لو ٹیک ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ اس پلیٹ فارم سے خواتین کو کیا اپرچونٹی ابھی تک آپ دے سکی ہیں؟ شی لوز ٹیک دنیا کا سب سے بڑا ویمن اینڈ اسٹارٹ اپ کمپٹیشن ہے. یہ اب پاکستان میں 8واں سال ہمارا چل رہا ہے. تو پہلے تو ہمارے ملک کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ گلوبل کمپٹیشن پاکستان میں آیا ہے. اور اس میں بیسکلی دیکھیں خواتین جو ہیں ان کے پاکستان میں بہت ان کے سامنے رکاوٹیں ہیں. تو تھرو شی لوز ٹیک ہم ایک ایکو سسٹم بنا رہے ہیں جس میں مینٹرز ہیں, جس میں ایکسپرٹس ہیں. ہمارا کمپٹیشن صرف لاہور, کراچی, اسلام آباد نہیں ہے, ایون پشاور, گلگت بلتستان, کوئٹہ, تو پورے پاکستان میں. اچھا, اس میں کوئی کرائٹیریا آپ نے رکھا ہوا ہے کہ جی فلاں اتنی ایجوکیشن ہو, اس کی یہ کوالیفیکیشن یا کچھ خاص چیزیں رکھی ہوئی ہیں؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. گلوبل کرائٹیریا کیونکہ 80 ممالک جو ہیں شامل ہوتے ہیں, تو ایک اسٹینڈرڈ کرائٹیریا اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ وومن ڈریون ہونا چاہیے, لیکن یعنی کہ ایک عورت لیڈ کر رہی ہو. اس کا کو فاؤنڈر میل بھی ہو سکتا ہے, وہ ہو. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو پروڈکٹ وہ بنا رہی ہے اس کا کوئی امپیکٹ ہونا چاہیے. اور تیسرا اس میں ٹیک کمپوننٹ بہت ضروری ہے. ٹیک کمپوننٹ ہونا چاہیے اور ایک منیمم وائبل پروڈکٹ, یعنی کہ صرف آئیڈیا دماغ میں نہیں ہے, اس کو کچھ ٹیسٹ کیا ہے, کچھ آپ کے کسٹمرز ہیں, اس لیول تک ہوتا ہے. بچوں کے لیے آج کے زمانے میں جس طرح وہ انگریزی یا اردو سیکھتے ہیں نا, تو کوڈنگ بھی ایک لینگویج ہے. وہ سیکھنا امریکہ جیسے ملک میں 5 سال کا بچہ سیکھ رہا ہے. تو کوڈنگ سکھانے کے لیے ٹیچرز کی وہ سکلز نہیں ہیں, تو اس لیے انہوں نے پورا اس کو آٹومیٹ کر دیا ہے کہ آپ کو ایک لائیو ٹیچر جو کہ کمپیوٹر سائنس کی گریجویٹ ہے, جس کو انہوں نے سرٹیفائی کیا ہے, وہ گھر بیٹھے, وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی اور بچہ بھی اپنے گھر بیٹھے ہوئے, اور ان کو سکھا رہے ہیں تھرو گیمنگ اینڈ فن فیچرز. تو ان کے آلریڈی جو ہیں 1500 کسٹمرز ہیں اور دنیا بھر سے کسٹمرز ہیں. تو آپ دیکھیں اس طرح کی ٹیکنالوجی پاکستان میں ایک عورت نے سٹارٹ کی ہے. اچھا میڈم, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں دنیا تو بہت آگے ہے, پاکستان بھی ترقی کر رہا ہے. ہمارا ہمسایہ ملک جو انڈیا ہے اس کا بڑا نام ہے. اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی میں آن لائن جو بزنس کر رہی ہیں خواتین, وہ بھی کافی اچھا ارن کر رہی ہیں اور گھر بیٹھے کر رہی ہیں. کیا وہ کام بھی کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ؟ جی بالکل. ہمارا سرکل کا ایک بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام, جس میں ہم نے 20,000 پلس لو انکم خواتین کو ٹرین کیا ہے کہ اسمارٹ فون کے ذریعے گھر بیٹھے کیسے آپ کاروبار کر سکتے ہیں. آج کے زمانے میں دکان کھولنا ضروری نہیں ہے. آپ انسٹا کو اپنی دکان سمجھیں, وہاں پہ اپنے پروڈکٹس ڈالیں, وہاں سے آپ کو آرڈرز آئیں گے. تو ہم یہ سب چیزیں ان کے موبائل والیٹس کھول رہے ہیں. ہم نے کوئی 15,000 پلس خواتین کے موبائل والیٹس کھولے, یعنی وہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کر سکتی ہیں, وہ والیٹ ان کے نام پہ ہے, ان کے پاس پیسے آئیں گے. سو یس, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہر عورت کو آج کے دور میں سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتی ہوں. تو جناب ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب وائس چانسلر ہیں لیڈز یونیورسٹی کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور, آپ یونیورسٹیوں کے اندر فیسیں لیتے ہیں, بچوں کو ڈگریاں دیتے ہیں, وہ بیچارے باہر جا کے پھر نوکریاں مانگتے پھرتے ہیں. اب اس کا سلوشن کیا نکالا, اصل بات بتائیں ہمیں. ہم نے لاہور لیڈ یونیورسٹی میں ہم نے یہ کیا کہ مختلف سبجیکٹس کو مرج کیا. جیسے ہمارے IT کے لوگ ہیں جو کہ IT سکلز سیکھتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ سے, لیکن ان کو کمرشلائزیشن اور مارکیٹنگ سیکھنے کے لیے بزنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملنا پڑتا ہے. تو ہم نے اس کی اسکیم آف اسٹڈی اس طرح ڈیزائن کی ہیں کہ جہاں پہ وہ IT پڑھتے ہیں وہاں وہ مارکیٹنگ بھی پڑھتے ہیں, وہاں وہ اکاؤنٹنگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ وہ انٹرپرینورشپ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک نالج کمپوزٹ قسم کا ملتا ہے آن ویریس سبجیکٹ, وہ ایک کمپلیٹ بزنس پرسن پروڈیوس ڈاکٹر صاحب, اسمارٹ فون ہر بندے کے جیب میں ہوتا ہے, اور اتنا وہ دنیا فاسٹ ہو گئی ہے, نوجوان فاسٹ ہو گیا ہے کہ فوڈ بھی فاسٹ کھاتے ہیں. تو اس میں مجھے بتائیے گا کہ اس سیل فون کو کیسے یوز کر سکتے ہیں ارننگ کے لیے. ابھی تو ہم صرف لوڈ کرتے ہیں, اس کے اوپر نیٹ پیکج کرتے ہیں, کالنگ پیکج کرتے ہیں, یعنی کہ ہم سپینڈ کرتے ہیں, اس سے ارن کیسے کرتے ہیں, اس پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ لیکن اب آپ کو
सेल फ़ोन ने आपके लैपटॉप को रिप्लेस कर दिया है, ये आपका कंप्यूटर है और इसके थ्रू यू आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। आप अपनी इसमें वेब डेवलप करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल के लिए यहाँ पर रखते हैं, उसको पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं, इसके थ्रू ही आपको ऑर्डर रिसीव होते हैं, इसके थ्रू आप पैसे लेते हैं अपने कस्टमर से। तो आपका सेल फ़ोन जो है ये आपका बैंक भी है, ये आपका सेल्समैन भी है, ये आपकी मार्केटिंग भी है, ये आपका डिस्प्ले सेंटर भी है और ये आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क भी है। ज़बरदस्त हो गया जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो लीजिए जनाब, हमारे साथ अरीन शाहिद साहिबा मौजूद हैं और जनाब ये प्रोग्राम मैनेजर भी हैं सर्कल वुमेन की। मुहतरमा क्या क्या बना डाला आपने? बस असल में सर्कल वुमेन में इस वक्त हम एम्पावर कर रहे हैं डिफरेंट टीयर्स ऑफ वुमेन को। जिस तरह आप इस कंपटीशन पर आए हुए हैं, इट्स फॉर हाई टेक स्टार्टअप्स, ठीक है, जो ख़वातीन टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्टअप्स करें। बट वी ऑल्सो केटर टू लो इनकम वुमेन, women who do not know how to use technology. So also there is a whole new work readiness program that we have launched, जिसमें बहुत सारी ख़वातीन हैं जो अपना बिजनेस नहीं करना चाहती, वो चाहती हैं कि वो जॉब्स करें, उनको अच्छी जॉब्स मिलें. So we are trying to create those linkages. So in all we are really expanding a lot. 28,000 low income women को अब तक हम ट्रेन कर चुके हैं for digital literacy, financial inclusion and entrepreneurship. जो इस कंपटीशन में आए हैं या कोई आइडियाज़ लेकर आते हैं, क्या उनका कोई क्राइटेरिया है कि भाई इस तरह की ख़वातीन होंगी, इस तरह की इस लेवल की लड़कियां होंगी, ये क्वालिफ़िकेशन होगी, वही हमारे मुकाबले में हिस्सा ले सकती हैं या आपके पास आ सकती हैं, या किसी भी इलाके से कोई भी खातून आपसे रब्ता करें? स्पेसिफिक कंपटीशन है शी लव्स टेक पाकिस्तान, ये अंडर आता है शी लव्स टेक ग्लोबल के, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरियल कंपटीशन. ओके, ठीक है. सो इट्स हैपनिंग इन 80 कंट्रीज. इनके हेडक्वार्टर सिंगापुर में. सो सर्कल वुमेन इसको पाकिस्तान में लेकर आया है. अभी जो स्टार्टअप्स पिच कर रहे हैं, ये 5 बूट कैंप सेशन से गुजरे हैं, जो एग्जैक्टली उनको उन्होंने प्रिपेयर किया है कि वो आज पिच करें. इनमें से जो सिलेक्ट होंगे, अब इनकी हम दोबारा मेंटरशिप करते हैं. आसान अल्फाजों में मुझे बताइएगा कि पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन जो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, वो अगर आपसे रब्ता करना चाहें या आपसे जो आप फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको वो हासिल करना चाहें, तो क्या तरीक़ेकार क्या है? देखिए, असल में ना मसला यही आ जाता है कि सर्कल वुमेन इस वक्त करंटली 8+ प्रोग्राम्स करे और आज सिर्फ आप एक प्रोग्राम को देख रहे हैं. सो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि वो हमारी वेबसाइट पर जाएँ, वो देखें कि उन्होंने क्या करना है. ज़बरदस्त होगा जनाब. आपको पता है कि मोर देन 50% जो आबादी है, पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो ख़वातीन पर मुहित है. और अगर ख़वातीन खड़ी होगी पाकिस्तान की, तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, मज़ीद ख़वातीन से बात करते हैं. तो लीजिए जनाब, हमारे साथ साइमा साहिबा मौजूद हैं. लम्स यूनिवर्सिटी के साथ इनका ताल्लुक़ है और लम्स यूनिवर्सिटी के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है जनाब. बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जो होते हैं जॉब सीकर होते हैं और यहाँ के हमने सुना है कि जॉब क्रिएटर होते हैं, क्योंकि वो उस पर काम करते हैं. तो मुझे ये बताएं कि हम गरीब लोग बेचारे, वो साडा भी कुछ करो. तुसी ये लम्स यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाई लिखाई जाते हो, अगे बढ़ाई जाते हो. तो मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा सेंटर है एंटरप्रेन्योरशिप का लम्स के अंदर, वो सिर्फ लम्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो आउटसाइडर्स के लिए भी है. और हम जनरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है. जो भी एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में, अपना काम करने की फील्ड में आना चाहता है, सो ये पाकिस्तान के किसी इलाके से भी आ सकता है और उसकी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी. इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी? बिल्कुल बिल्कुल. और उसमें अच्छी बात एक और भी है कि लम्स के स्टूडेंट्स के अलावा बाहर पब्लिक में जो ऑफ़र करते हैं वो सिर्फ स्टूडेंट लेवल को नहीं करते. अगर कोई मिड करियर में भी कोई आकर अपने करियर चेंज करना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है एंटरप्रेन्योरशिप की, उनके लिए भी यानी कि जिसको हमारी उम्र में जाके एहसास हो गया होता है. बहुत सारे लोगों को एहसास होता है कि कितनी देर हम नौकरी करते रहेंगे और वो अपने आइडियाज़ क्रिएट करना चाहते हैं. सो आई थिंक उसके लिए भी हमारी स्पेस बहुत ही यूनिक है. फाइनेंशियल जो इश्यूज होते हैं ना, मसले जो बनते हैं, वो स्टूडेंट बड़े काबिल होते हैं मगर बेचारों को आइडियाज़ भी अच्छे होते हैं, दिमाग भी काम कर रहा होता है, जेब में पैसा कुछ नहीं होता. उसका कुछ करना है आप ना कि स्टार्टअप्स को जो है वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं. आई थिंक उसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है पाकिस्तान में इस वक्त कि जो भी कोई आइडिया कोई कर रहा हो, उस आइडिया को पहले अच्छे आज के इवेंट की तरह के और मेंटोरशिप की तरह पहले आइडिया को अच्छी तरह रिसर्च की जाए, क्या उसकी ज़रूरत पाकिस्तान में है और क्या वो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है. अगर वो आपके पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, जो कि हंगर को रिमूव करने के लिए, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर हेल्थ केयर की फैसिलिटी के लिए, तो उसके लिए हम इन्वेस्टर समिट्स करते हैं. मैडम, लम्स की और ये सर्कल वालों की जो कोलैबोरेशन है, अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा इकदाम कर रही हैं आप, लेकिन पाकिस्तान में बेरोज़गारी, बेरार रवी और मिसलीडिंग इतनी ज़्यादा है कि आप क्या समझती हैं कि किस लेवल तक जाके आपको काम करना पड़ेगा तो चंद सालों में हमें रिजल्ट सामने आएंगे? मुझे हर दफ़ा, अभी मैं पैनल डिस्कशन में भी यह बात कर रही थी कि हम जब भी कोई काम करते हैं, आपको उससे हमेशा
बिल्कुल आपने सही कहा, उससे एक स्टेप पीछे जाना पड़ता है हर दफ़ा, और पता चलता है कि मसला उससे भी बड़ा था जिस लेवल का हमने सोचा उसके साथ भी। तो उसमें आई थिंक हम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर हम कोलैबोरेट करके काम करें। हर किसी को हर चीज़ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए जनाब, माशाल्लाह से पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं वो बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रही हैं, और यहाँ पे मिस आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो जो जिसमें सांप नहीं होते थे पटारियाँ, ये वो रख के बैठी हुई। मैडम इनका क्या करना है, कौन से सांप निकालने हैं आपने, जहरीले नाग? नहीं सर, सांप कोई नहीं निकालने। दीज आर बेसिकली द प्रोडक्ट्स मेड बाय द एंटरप्रेन्योर्स, सर्कल ट्रेन देम। हमने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है डिजिटल मीडिया के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, स्मॉल बिजनेसेस के बारे में, और उसके थ्रू वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए, इंटरनेट को यूज़ करते हुए ये प्रोडक्ट्स सेल करती हैं। इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वो बना भी खुद रही हैं। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान की वो दस्तकारियाँ जो हैं वो हैंडमेड जो चीज़ें हैं, जो कि वो अब आपका जो सेल फ़ोन है नाज़रीन, वो एक शॉप बन चुका है। आप उसको जब ऑन करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी दुकान का शटर ऊपर हो चुका है, और ये सारा सामान है जो ऑनलाइन आप सेल आउट करते हैं। क्या रिस्पॉन्स है? हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अच्छा, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। स्मॉल बिजनेस शुरू में जब हम स्टार्ट, माशाल्लाह से मैं आशा देख रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, मतलब कि, और उनका स्टफ़ भी बड़ा ज़बरदस्त है। और ये आपका जो प्लेटफॉर्म है शी लव टैग, उसी से ही ये फ़रोख्त करते हैं, या अलग से अपना अपना बिज़नेस जो है वो ख़वातीन कर रही हैं? ख़वातीन अपना बिजनेस अलग से कर रही हैं, और शी लव्स टेक हमारा एक प्रोजेक्ट है। इसी तरह हमारा एक प्रोजेक्ट है डिजिटल लिटरेसी। अच्छा, ये उसके ग्रेजुएट्स हैं। जनाब देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का आर्ट पीस है, और इतनी नफासत के साथ बनाया गया है, यानी कि कोई नज़रों का धोखा या कैमरे की सफाई नहीं है। ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं, और पूरी दुनिया के अंदर ये इस वक्त सेल आउट हो रही हैं। जनाब पहले सर मुश्किल था कि आप चीज़ों को बेचना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता था कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है। ये भी हैंडमेड है मिस आयशा? जी जी जी। ये क्या चीज़ यूज़ की हुई है? ये बीड्स यूज़ किए हुए उन्होंने वायर के साथ। जनाब देखें ज़बरदस्त किस्म का हैंड बैग है, और इसी तरह ख़वातीन यहाँ पर जो है ज़बरदस्त किस्म के कारनामे सर अंजाम दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद से बात करते हैं। लीजिए जनाब, मेरे साथ एक और सिनफ़े आहन मौजूद हैं, पाकिस्तानी लड़की हैं और माशाल्लाह बड़े बड़े काम करती हैं। मिस ईमान, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल चाल? ख़वातीन इस टाइम ऐसे मैदान में कूदी हुई हैं जैसे कोई मैदान जंग बना हुआ है। अपने अपने आइडियाज़ लेके आए। क्या प्रोजेक्ट है आपका, किस पे आजकल काम कर रही हैं आप? सो अलिफ का आइडिया क्या है, सिंस वी बिलीव कि हर कामयाबी का रास्ता जो होता है वो स्टार्ट अलिफ से होता है। इसके पीछे सोच ये थी, ठीक है। तो जब भी किसी फाउंडर, किसी सीईओ को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, चाहे ग्लोबली करना हो या पाकिस्तान में करना हो, तो उसको एक अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है कि वो अपनी इंडस्ट्री में एक लीडर, एक एक्सपर्ट माना जाए। तो उसके लिए उसकी मार्केटिंग करने के लिए कौन है? उसकी मार्केटिंग करने के लिए पाकिस्तान में कोई कंपनी काम नहीं कर रही थी। वाह। सो दिस इज़ द आइडिया। हम ये आइडिया लेकर आए हैं मार्केट में, और इस पे इंटरनेशनली काम हो रहा था। यूएस कंपनी है डिफरेंट, तो लेकिन पाकिस्तान में नहीं था। ये गैप था जो हमने गैप फिल किया, और इस तरह से मेरे साथ और इनोवेटर्स जो और लड़कियां लड़के जो इस चीज़ पे काम करने के लिए डेलिब्रेट हैं, वो मेरे साथ अटैच्ड है, बीइंग माय टीम। सो ये यानी कि अलीफ से ईमान, अलीफ से अकेली ईमान चली, और जनाब एक ऐसा आइडिया दिया कि अब वो पूरा काफिला बनता जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि जिन लोगों को कोई नहीं जानता वो जानना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, आप ठीक है। और आप मुझे बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर फीमेल का ऐसे काम करना इतना आसान नहीं था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हर शोबा ज़िंदगी के अंदर ख़वातीन पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब क्या देख रही हैं आप, फ्यूचर में क्या होने वाला है, पाकिस्तान कहाँ जाने वाला है? कोई खुशखबरी सुना दें हमें। श्योर, डेफिनेटली। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत सी कंपनीज में फाउंडर्स ही आप देख रहे हैं औरतें हैं, ठीक है। और हमें एक इकोसिस्टम में बनाने की ज़रूरत है कि अगर आज एक मैंने कंपनी स्टार्ट की है, तो मेरी सोच ये होनी चाहिए कि मेरे साथ 10 और लड़कियां साथ चलें। मैं एक इकोसिस्टम बनाऊं, मैं एक वो सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूं जहां पे लड़कियां मेरे साथ मिलकर काम कर सकें, उनको आगे उनका फ्यूचर ब्राइट नज़र आए। तो जब एक औरत की ये सोच होगी, तो मेरा ख्याल है 7-10 औरतों की भी सोच ये बनती जाएगी, और एक चेन बन जाएगी। तो अब आप क्या समझती हैं कि जो आने वाली ख़वातीन हैं, या आपके शोबे से या IT से जो मुंसलिक ख़वातीन हैं, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी बनाएंगी कि सिर्फ आपने अपना ही भला करना है? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा। जिस तरह मैंने बात की कि एक औरत साथ अपने 10 औरतों का एक काफिला लेके चलती है, तो यही मेरी सोच है। अभी मैंने इसी चीज़ को समझते हुए मेरा अपना विजन ये है कि आई वांट कि मेरे साथ स्टूडेंट्स, लड़कियां जो हैं वो ज़रूर चलें, जो कि अभी स्टार्टिंग लेवल से अपना करियर स्टार्ट और वो इंडस्ट्री में आएँ, अभी से आएँ। मैं उनको वो सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूँगी जहाँ पर वो एक साथ मिल के काम कर सकें, सीख सकें। तो मेरा शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट ही ये है कि मैं अपने साथ अपनी जैसी जो एनर्जेटिक लड़कियाँ हैं, जो इस पर काम करने के लिए तैयार हैं, जो कुछ करना चाहती हैं,
वो एक पूरा ग्रुप मेरे साथ चले। ज़बरदस्त। तो ये एक सोच है, अल्लाह ताला बहुत खुशी हुई जनाब इनसे बात करके, और हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन है वो मर्दों के शाना बशाना क्या, मर्दों से आगे बढ़ के निकले। भाई हमें ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि भाई अगर मर्द काम कर रहा है, ऐसी सोच वाले मर्दों की बहुत ज़रूरत है। ये मर्द आपका हुआ। तो जनाब मुझे बहुत खुशी हुई आज इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा बन के, क्योंकि ख़वातीन माशाल्लाह बड़ा ही उनके अंदर जज्बा है और टैलेंट भी है जनाब। सिर्फ जैली कार्रवाई या कैमरे की सफाई नहीं है, बाकायदा यहाँ पर कंपटीशन हुआ है। जजेस जो है फैसला करेंगे कि किसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है।